اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج کے دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق کورونا سے متعلق ہے کہ وبا کو ٹی بی کے بڑھنے کا سب سے بڑا سبب قرار دے دیا گیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق کورونا کی وبا کے بعد ٹی بی میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے اور پچھلے سال دنیا بھر میں 1 کروڑ لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ WHO کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کورونا کی وبا کے بعد جہاں ٹی بی میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے، وہیں پھیپھڑوں کو متاثر کرنے والی بیماری کے خلاف طویل جدوجہد بھی ناکام ہو گئی ہے اور سالوں کے بعد پھر ٹی بی خطرہ بن کر سامنے آ چکی ہے۔ برطانیہ نے کورونا وائرس کے 2 نئے ویرینٹ کے 700 کیسز کی نشاندہی کا اعلان کیا ہے۔ ہیلتھ سیکورٹی ایجنسی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ میں اومیکرون ویرینٹ کے کثیر تعداد میں ذیلی ویرینٹ بھی موجود ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مستقبل کے مطالعے کے لیے کووڈ-19 وائرس کے اومیکرون ویرینٹ کے ذیلی ورژن کو BQ.1 اور XBB کا نام دیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے ہر کسی کو ویکسین لگوانے کی اپیل کی ہے۔ انڈیا کی ایک نجی کمپنی پہلی مرتبہ فوجی مقاصد کے لیے ایک طیارہ بنانے جا رہی ہے۔ ایئر فورس کے لیے C-295 قسم کے یہ طیارہ ٹاٹا گروپ اور ایئر بس کے اشتراک سے ملک کی مغربی ریاست گجرات میں بنائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس منصوبے کا افتتاح کیا ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق اس سلسلے کا پہلا میڈ ان انڈیا طیارہ ستمبر 2026 میں متوقع ہے۔ فریڈم نیٹ ورک کی سالانہ امپیونٹی رپورٹ 2022 کے مطابق پاکستان میں 2012 سے 2022 کے درمیان ہونے والے صحافیوں کے قتل کے 96% واقعات میں ملزمان کو کوئی سزا نہیں ملی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2012 سے 2022 کے درمیان 53 پاکستانی صحافیوں کو قتل کیا گیا، لیکن ان 53 کیسز میں سے صرف 2 کے مجرموں کو سزا سنائی گئی۔ پاکستان میں 2012 سے 2022 کے درمیان اپنے کام کی وجہ سے قتل کیے گئے 53 صحافیوں میں سے سب سے زیادہ ہلاکتیں سندھ میں ہوئی، جہاں 16 یا مجموعی تعداد سے 30% صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ اس کے بعد پنجاب میں 14 یا مجموعی تعداد کے 26% میڈیا پرسنز کو ہدف بنایا گیا۔ یورپی پارلیمنٹ نے 2035 تک پیٹرول اور ڈیزل انجن گاڑیوں کی فروخت پر پابندی کے لیے قانون سازی کی منظوری دے دی ہے۔ یورپی ممالک میں اب تک فروخت ہونے والی 12% نئی گاڑیاں الیکٹرک کاریں ہیں۔ خریدار بھی اب پیٹرول اور ڈیزل انجن کی بجائے الیکٹرک کاریں خرید رہے ہیں۔ یورپی کمیشن کی طرف سے پیش کردہ معاہدے پر رضامندی کے تحت دھواں خارج کرنے والی گاڑیاں 2035 تک بند ہو جائیں گی۔ دہشت گرد گروپ اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش کے جنگجوؤں کی بیویوں اور بچوں کا ایک گروپ شام میں برسوں گزارنے کے بعد آسٹریلیا واپس پہنچ گیا۔ کینبرا ایسی مزید خواتین اور بچوں کو واپس لانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سڈنی میں 4 خواتین اور 13 بچوں کی آمد کے ساتھ ہی آسٹریلیا نے شمالی شام یعنی نارتھ سیریا میں نام نہاد اسلامک شدت پسند گروپ اسلامک اسٹیٹ داعش کے لیے لڑنے والے افراد کے خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد کو وطن واپس لانے کے لیے ایک نئے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ آسٹریلیا پہنچنے والا یہ گروپ شام کے بدنام زمانہ الروز کیمپ میں رہتا تھا۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام۔ الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان۔ شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ۔ خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا ویا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ بیلجیم میں مہنگائی کی شرح 1975 کے بعد تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں اب روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہونے لگا ہے۔ گزشتہ ماہ یعنی ستمبر کے مقابلے میں صرف اکتوبر کے مہینے میں 1% اضافے کے ساتھ مہنگائی 12.27% پر پہنچ گئی ہے۔ ستمبر کے مہینے میں یہی شرح 11.27% پر کھڑی تھی۔ برطانیہ میں ایک ٹک ٹاک انفلوئنسر اور پاکستانی نژاد مہک بخاری اور ان کی والدہ انسرین بخاری پر الزام ہے کہ انہوں نے 2
दो पाकिस्तानी नज़ाद नौजवानों मोहम्मद हाशिम इजाजुद्दीन और साकिब हुसैन को मनसूबा बंदी के तहत सड़क के हादसे में जान से मरवा दिया था। मोहम्मद हाशिम इजाजुद्दीन और साकिब हुसैन का ताल्लुक ऑक्सफोर्ड शहर से था और दोनों की उम्र 21 वर्ष थी। 11 फरवरी को ये दोनों बरतानवी शहर लीस्टर के पास एक कार हादसे में हलाक हो गए थे। इस मामले में 23 साला महक बुखारी और उनकी 45 साला वालदा के अलावा 6 दीगर अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई है। अदालत को बताया गया कि साकिब हुसैन और महर की वालदा अंसरीन बुखारी के दरमियान माशके का आगाज 2019 में हुआ और यह ताल्लुक जनवरी 2022 में ख़त्म हो गया। अदालत को बताया गया कि साकिब के पास अंसरीन की सेक्स वीडियोस और तस्वीर थी और ताल्लुकात ख़त्म हो जाने के बाद वो बार बार अंसरीन से रब्ता करता और धमकी देने लगा कि अगर उन्होंने रब्ता ना किया तो वो इनकी ज़ाती तस्वीर और वीडियोस इंस्टाग्राम पर शाया कर देगा और उनके शौहर और बेटे को भेज देगा। केस में कुल 8 मुल्ज़मान के खिलाफ 2 अफराद के कत्ल के मुकदमे की समाअत बरतानिया में जारी है। डच यानी हॉलैंड की आबादी 17.8 मिलियन तक बढ़ गई है और इसकी वजह मुल्क में इमिग्रेंट्स की आमद है। रवां साल के पहले क्वार्टर में हॉलैंड की आबादी में तकरीबन 1,91,000 मजीद शहरियों का इजाफा हुआ है। यह तादाद 2021 में इसी मुद्दत के मुकाबले में दुगनी हो गई है। आदाद शुमार में इंकशाफ किया गया है कि मुल्क में इमिग्रेशन में 30% इजाफा हुआ है। ज़्यादातर लोग यूक्रेन से आए हैं। नतीजे के तौर पर अक्टूबर के आगाज़ में तकरीबन 17.8 मिलियन अफराद हॉलैंड में आबाद हुए हैं। यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने रेड नेशन डील के तहत पिछले 3 महीनों में 868 जॉर्जियाई बाशिंदों को डिपोर्ट किया है। डिपोर्ट होने वाले 868 जॉर्जियन अफराद को यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट किया गया है। ज़्यादातर का ताल्लुक जर्मनी से है क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन में वीज़ा के बगैर रहने के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इनमें स्पेन ने भी 17 जॉर्जियन अफराद को डिपोर्ट किया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने FBR को ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक फ़ोन पर टैक्स छूट की सिफारिश कर दी है। PTA समंदर पार पाकिस्तानियों का मोबाइल फ़ोन 60 रोज़ बाद ब्लॉक नहीं करेगी। इलामिया में कहा गया कि 60 रोज़ बाद भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को टैक्स देकर फ़ोन रजिस्टर कराना होता था। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फ़ोन नंबर 9313923341। स्पेन की नेशा पुलिस ने एक 17 साल नौजवान को पार्टी में 15 साल गेस्ट लड़की से जिनसी ज्यादती करने और इस ज्यादती को लाइव इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नौजवान को जिनसी ज्यादती के जुर्म में गिरफ्तार किया है। इस वाक़े के खिलाफ रिपोर्ट लड़की की मां ने दायर की थी। जिनसी ज्यादती की वीडियो नौजवान के एक दोस्त के मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड की गई थी। ज्यादती के वक्त लड़की नशे की हालत में थी और वो बेसुध थी। स्पेन में इलेक्ट्रिक स्कूटर इस्तेमाल करने वालों को कारों या मोटरसाइकिल सवारों की तरह जुर्माना किया जा सकता है। गो इलेक्ट्रिक स्कूटर का दीगर गाड़ियों की तरह ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता और DGT के मुताबिक ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर यह जुर्माने 1000 यूरो तक हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने वालों पर अल्कोहल की भी पाबंदी है कि वो हद से ज्यादा ना पी हो। बार्सिलोना में एक 92 साल माउमर खातून मरीना को बार्सिलोना के अपार्टमेंट से बेदखली का सामना है। माउमर खातून मरीना और उसकी बेटी को 16 नवंबर को अपना घर छोड़ना पड़ेगा कि बेदखली की वजह मकान की एक साथ की अदम अदायगी है और अदालत ने इस 92 साल माउमर खातून मरीना की बेदखली का फैसला दिया है। मरीना जिस घर से बेदखल होंगी, इस घर में उन्होंने अपनी उम्र के तमाम साल गुजारे हैं। बार्सिलोना में दाखिल होने वाले रास्ते सी 58 पर एक गाड़ी में आग लग गई, जिससे काले धुएं के बादल फजा में बुलंद हो गए और सी 58 पर ट्रैफिक रुक गई। बार्सिलोना के मोहल्ले सान आंद्रियो में एक दुकान पर चाकू से डराकर लूटने वाले डकैत को पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार डकैत वारदात के वक्त अकेला था और मोटरसाइकिल हेलमेट पहना हुआ था ताकि वो पहचाना ना जा सके। गिरफ्तार शख्स पर सान आंद्रियो और सांता क्लोमा दे ग्रामानेट में 9 डकैतियों का इल्जाम है। बार्सिलोना की खातून मेयर आदा कोलाओ ने इस इम्कान को रद्द कर दिया है कि वो फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्पेन के मैचेस दिखाने के लिए मखसूस मकामात पर इंतजाम करेंगी। उन्होंने कहा कि वो इसलिए मैचेस दिखाने का एहतमाम नहीं करेंगी क्योंकि कतर में आमराना निज़ाम नाफिज है जो इंसानी हकूक की सरासर नफी है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट।
बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुल रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। स्पेन की नशा पुलिस, हस्पानवी टैक्स एजेंसी हासिंदा और अमरीकी महकमा कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन के बाहमी ताउन से मैड्रिड में एक मुजरमाना नेटवर्क का खात्मा कर दिया गया, जिसने इंडियन सिटीजन्स को जाली इमिग्रेंट्स डॉक्यूमेंट दी थी ताकि वो अमेरिका का सफ़र कर सकें, और इस मकसद के लिए पर पर्सन 1 लाख यूरो वसूल किए गए थे। इस मुजरमाना गिरोह के 2 मराकज़ थे, जिसमें एक इंडिया और दूसरा मैड्रिड में था। इस मुजरमाना नेटवर्क की इंडियन ब्रांच का काम ग्राहकों को घेर कर स्पेन भेजना था और मैड्रिड ब्रांच उन्हें फेक डॉक्यूमेंट्स पर अमेरिका भेजती थी। ऑपरेशन के दौरान 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। आदाद शुमार से पता चला है कि 2014 से लेकर अब तक यूरोप पहुंचने की कोशिश में 29,000 से ज़ायद तारकीन वतन अपनी जानें गंवा बैठे हैं, जबकि मौजूदा साल के आगाज से लेकर अब तक 5,684 इमिग्रेंट्स जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इन जानें गंवाने वाले तारकीन वतन की अक्सरियत हलाकत बहरा रूम यानी मेडिटेरियन के रास्ते तुनिस, लीबिया से माल्टा और इटली की तरफ आते हुए हुई हैं, जहाँ तारकीन वतन खतरनाक और छोटी खर्चियों में समंदर पार करते हैं। जनवरी 2021 से लेकर अब तक मजमूई तौर पर 2,836 इमिग्रेंट्स के साथ रेफ्यूजीज भी इस रास्ते में अपनी जानें गंवा चुके हैं। 2021 से मगरबी अफ्रीका से स्पेन के आइसलैंड कनारिया से अटलांटिक ओशन के रास्ते 1500 से ज़्यादा अमवात दर्ज की गई हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और बशारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।